Today we will discuss next topic of Fourier transforms. So next topic is Fourier cosine transforms. Then we will define Fourier sine transforms and then their inversion formulae. So after defining these things, we will discuss various properties of Fourier cosine and sine transforms like linear property, change of scale property, modulation theorem, and Fourier cosine and sine transforms of the derivatives. So first we will state what are the sufficient conditions for the existence of Fourier cosine and sine transformations. Okay. So सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि sufficient conditions क्या है. Clear? For the existence of Fourier cosine and sine transforms. देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स की हम बात करें या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स की बात करें, बेसिकली दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर द स्पेशल केसेस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ एक्स. Okay, when fx is even or odd function. Clear? So when fx is even or odd function, then we have special cases of this type of transformations, right? So Fourier cosine and sine transforms can be considered as special case of Fourier transform of fx when fx is even or odd function of x over the real axis. Clear? Now, what are the sufficient conditions for the existence of Fourier cosine and sine transforms? देखिए यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशंस वैसी ही रहेंगी लगभग, ठीक है, जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के लिए वहाँ पे बताई थी प्रीवियस स्लाइड्स में, जो आपने बताई थी, ठीक है. बट थोड़ी सी चेंजेस आएंगी क्योंकि आपने देखा होगा फोरियर सीरीज़ जब आप डेवलप करते हो, ठीक है, उसके बाद आप हाफ रेंज सीरीज़ का कंसेप्ट स्टडी करते हो, तो आपके पास रेंज जो थी, जो इंटरवल जो दिया होता था, वो फिर -L to L नहीं दिया होता था, वहाँ पर 0 to L या 0 to C या 0 to पाई इस टाइप का इंटरवल दिया होता था, ठीक है. तो पहली कंडीशन जो सफिशिएंट कंडीशन है वो वैसी ही रहेगी, बट उसमें जो फाइनाइट इंटरवल है वो -L to +L के बदले में इंटरवल होगा 0 to L. Clear? So fx is piecewise continuous. First condition is fx is piecewise continuous on every finite interval 0 to L. That one is the first sufficient condition for the existence of Fourier sine transforms or Fourier cosine transforms. Clear? And second sufficient condition is fx is absolutely integrable. ये condition भी हमने वहाँ पे study की है. fx is absolutely integrable on the positive real axis. इसका मतलब क्या है? This means that integral 0 to infinity fx dx, magnitude of fx dx converges. तो यहाँ positive real axis means limit from this integral from 0 to infinity. This magnitude of fx dx converges. तो देखिए जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, तभी आप कह पाओगे कि ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये एग्जिस्ट करती है. फोरियर कोसाइन एज वेल एज साइन ट्रांसफॉर्मेशंस exist. So these are the sufficient conditions for the existence of these type of transformations. Clear? अब जो इनवर्स फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स हैं उसकी सफिशिएंट कंडीशंस क्या है? Sufficient condition for the existence of inverse Fourier cosine and sine transforms. So we have one sufficient condition and that one is FCS and FSS. FCS and FSS. ये जो C है ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए है. FS जो है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. ओके, सो FCS and FSS must be absolutely integrable over this range 0 to infinity. This means that 0 to infinity magnitude of fx dx converges. Clear? So then we can say that the given inverse Fourier transforms exist. Clear? So next we will discuss how can we develop the formula for evaluating the Fourier cosine transforms and its inversion formula. Now see,
We know that the Fourier integral of an even function fx reduces to the Fourier cosine integral given by this. ये देखिए आपने पहले जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है जहाँ पे हमने फोरियर इंटीग्रल को डिस्कस किया था, ठीक है, इंटीग्रल्स को डिस्कस किया था, वहाँ से आप इस स्टेप को देख सकते हो. वी नो दैट फोरियर इंटीग्रल ऑफ एन इवन फंक्शन एफ एक्स रिड्यूसेस टू द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity a alpha cos alpha x d alpha. Clear? And substitute here the value of a alpha. A alpha is 2 divided by pi integral 0 to infinity ft cos alpha t dt. Okay, substitute this value. Substitute this value. So we obtain this expression. Okay, we obtain this expression. Now put FCS is equal to this bracket term. Put FCS is equal to 0 to infinity fx cos sx dx. Just replace alpha by s and t by x. Okay, after replacing alpha by s and t by x, okay, this bracket term converted into this one. Okay, so that one is FCS. Clear? And when we substitute FCS is equal to this, then what is fx? Then fx is 2 over pi as it is, integral 0 to infinity as it is, and this bracket term is FCS, and cos alpha x d alpha means cos sx ds. Okay, so you have replaced alpha by s. Okay, alpha by s. Clear? So cos sx ds. Clear? तो ये जो fc है, this one, ये जो fc है, this one is Fourier cosine transform of fx. Clear? So this FCS is called Fourier cosine transform of fx in the interval 0 to infinity. And fx is given by fx is equal to this expression. Okay, this expression is called the inverse Fourier cosine transform of FCS. क्लियर? तो देखिए ये जो रिजल्ट है, ये जो आपने फोरियर इंटीग्रल को जो डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, वहाँ पर हमने इवन और ऑड फोरियर इंटीग्रल्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है. तो वहाँ पे फोरियर को साइन इंटीग्रल, फोरियर साइन इंटीग्रल को डिफाइन किया था. बस उसी स्टेप को हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है. हम कब कहेंगे कि ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और इसका इन्वर्शन जो फार्मूला है वो क्या है, ठीक है. तो उस at that time fx is defined by this relation. We have developed this relation fx is equal to 0 to infinity a alpha cos alpha x d alpha, ठीक है. और a alpha की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. क्लियर? एंड देन दिस ब्रैकेट टर्म इज नथिंग बट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स. ओके, एंड दिस fx is this inverse Fourier cosine transforms of FCS. So in this way we can define Fourier cosine transforms. Now next one is, how can we define Fourier sine transforms? We know the Fourier integral of an odd function fx reduces to the Fourier sine integral given by this. Clear? Then again substitute the value of b alpha, and you know what is b alpha? B alpha is 2 divided by pi integral 0 to alpha ft sine alpha t dt. So substitute this value, substitute the value of b alpha, this. Okay, we obtain this result. Okay, now put this bracket term after replacing alpha by s and t by x. fs is this. Put ss is equal to this integral. Then fx become this. Okay, fx become this. So here this fs, this result, this fs is called Fourier sine transform of fx. Fourier sine transform of fx in the interval x 0 to infinity. And fx is given by fx is equal to 2 over pi integral 0 to infinity fss sine sx ds is called inverse Fourier sine transform of FSS. Clear? So in this way you can define all these Fourier cosine transform and Fourier sine transforms and its inversion formula. अब देखिए
इसको डिफाइन करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स। हम चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लीनियर प्रॉपर्टी, जिसको हम लीनियरिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फॉर फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स। देन वी विल डिस्कस मॉड्यूलेशन थ्योरम फॉर फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स। देन फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो देखिए, ये जो पहली दो प्रॉपर्टीज हैं, ये तो डायरेक्टली आपकी डेफिनेशन से ही डिड्यूस हो जाती हैं। हाँ, हम इन दो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि कैसे प्रूव करना होता है इन दोनों रिजल्ट्स को। ओके, सो वन बाय वन लेट अस डिस्कस द प्रूफ ऑफ दीज properties. So first, what is linear property? Now, statement of linear property is for any two functions fx and gx whose Fourier cosine and sine transformations exist. Okay, we have considered two functions fx and gx whose Fourier cosine and sine transformations exist, and for any constants a and b, fc means Fourier cosine transformation of this a fx plus b gx is equal to a fc fx plus b gc gx, and this can also be written as fcs, and this can also be written as gcs, means function of s. Clear? तो ये आपका बनेगा फोरियर कोसाइन transformation, linear property of Fourier cosine transformation. And linear property for Fourier sine transformation is fs a fx plus b gx is equal to a fx plus b gs gx, and this can also be written as a fss plus b gss. Clear? And the proof follows directly from the definition of Fourier cosine and sine transforms. Clear? So no need to prove each and everything here. Okay, so but remember what is linearity property, okay, for Fourier cosine and sine transforms. Clear? Now second property is change of scale property of Fourier cosine and sine transformations. So what is the statement? If fs is the complex Fourier transforms of fx, if fs is the complex Fourier transforms of fx, then by change of scale property of Fourier transform, we have f ax is equal to 1 by a f s over a, where a is not equal to 0. देखिए, जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का टॉपिक किया है सेकंड लेक्चर, उसमें थर्ड लेक्चर, ठीक है, उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया होगा। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है। ठीक है ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए 1 ओवर ए एफ एस ओवर ए। अब हमने यही जो प्रॉपर्टी है ये हमने फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स के लिए कन्वर्ट करनी है। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं जैसे आपने जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज़ की थी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस की है। इफ़ यू रिमेंबर, in Laplace transformations, you know, if LFT is equal to F bar S, then LFAT is equal to 1 over A F bar S over A. देखिए ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट देखिए, ठीक है, ये रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट देखिए, सिमिलर सा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये उसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस किया, वैसी ही प्रॉपर्टीज़ आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस में भी हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, अब अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो आप सिमिलरली वी कैन राइट द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स। वो क्या है? वो बनेगी आपकी ये एफ सी एफ ए एक्स। ठीक है, तो यहां पर आपका लगेगा एफ सी एफ ए एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए एफ सी एस ओवर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? fs fax is equal to 1 over a fs s over a, and this a is not equal to 0. तो यहाँ पे आपका fss लग गया। ठीक है, and again the proof follows directly from the definition of Fourier cosine and sine transforms. क्लियर? तो जैसे आपने इसका प्रूफ किया हुआ है, सिमिलर पैटर्न पे आप
इन दोनों रिजल्ट्स को भी आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड property. That one is important property, modulation theorem. Modulation theorem for Fourier cosine and sine transforms of fx. Clear? So इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? ठीक है, मॉड्यूलेशन थ्योरम आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के लिए ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है, लेकिन अब मॉड्यूलेशन थ्योरम फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफएक्स, इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि बाद में यूज होंगे। इफ एफ सी एस एंड एफ एस एस आर द फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्टिवली, देन एफ सी एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू दिस 1/2 एफ सी एस प्लस ए प्लस एफ सी एस माइनस ए। क्लियर? नाउ एफ सी एफ एक्स साइन ए एक्स 1/2 एफ एस एस प्लस ए माइनस एफ एस एस माइनस ए। थर्ड वन इज एफ एस एफ एक्स कॉस ए एक्स इज 1/2 एफ एस एस प्लस ए प्लस एफ एस एस माइनस ए। एंड फोर्थ वन इज एफ एस एफ एक्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ सी एस माइनस ए माइनस एफ सी एस प्लस ए। तो इससे पहले जो आपने किया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूलेशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, उसमें आपने बस इतना सा रिजल्ट डिराइव किया हुआ है, एफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ एस प्लस ए प्लस एफ एस माइनस ए। ये रिजल्ट आपने एक प्रूव किया हुआ पहले से, ठीक है, इसलिए हम आज चारों रिजल्ट्स जो हैं वो 1 by 1 करके प्रूव करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस प्रूव फर्स्ट रिजल्ट एफ सी। देखिए इन रिजल्ट्स को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये सी है, ये सी है, ये सी है, क्लियर, बट ये सी है, ये साइन हो गया, यहाँ पे एस और एस हो गया, क्लियर, और साइन भी, ये भी आपका चेंज हो गया, यहाँ एस है, यहाँ कॉस है, ये एस होगा, ये एस होगा, क्लियर, यहाँ एस है, यहाँ साइन है, ये सी होगा, ये सी होगा, और साइन भी चेंज हो रहा है। ये बड़े ध्यान से आपने देखना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि इन रिजल्ट्स को राइट साइड को देखो ही मत, आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो लेट अस प्रूव दिस फर्स्ट रिजल्ट। नाउ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एफ सी एफ एक्स कॉस ए एक्स। Let us from left hand side. So f c f x cos a x by definition f c s is equal to 0 to infinity integral f x cos s x dx. तो देखिए यहाँ जो f x है, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो आपने ये फंक्शन एज इट इज लिखा, cos s x dx एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ सी एस, ओके, so write fc fx cos ax, we get this result। क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने दोनों टर्म्स इकट्ठी कर ली, और fx जो है, ये जो fx है, इसको मैंने यहीं पे रखा, fx dx। क्लियर? अब हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला क्या है, cos अल्फा cos बीटा, alpha is sx, beta is ax, cos alpha cos beta is 1/2 cos alpha minus beta plus cos alpha plus beta. You know this formula, okay, so apply this formula here, so we obtain 1/2, okay, ये 1/2 लगा, cos s plus a x fx dx plus integral cos s minus a x fx dx। तो ये जो fx dx है, ये as it is यहाँ पे लग गया, क्लियर, और फिर आपने ये फार्मूला साथ में अप्लाई कर दिया, तो आपका ये रिजल्ट बन रहा है। क्लियर हो गया? नो नेक्स्ट स्टेप इज दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स, ये एफ एक्स लिख दिया, कॉस एस प्लस ए, ये कॉस एस प्लस ए लिखा, एक्स भी साथ में है, ठीक है, और डी एक्स यहाँ पे लिखा। सिमिलरली ये एफ एक्स पहले लिख दिया, कॉस एस माइनस ए एक्स सेकेंड फंक्शन लिखा, और डी एक्स एज इट इज लिखा। अब आपने यही डेफिनेशन यूज करनी है, कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस एक्सप्रेशन, ओके, वी ऑब्टेन 1/2 एंड दिस इंटीग्रल इज, फर्स्ट इंटीग्रल इज एफ सी एस प्लस ए एंड सेकेंड इंटीग्रल इज एफ सी एस माइनस ए। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो एक एक स्टेप को आप सेपरेटली कैलकुलेट करके देखो, ठीक है।
ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा एस प्लस ए आएगा, एस माइनस ए आएगा, डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है, ठीक है। अगर ये कॉस है तो आपका ये सी आ रहा है, ठीक है। ये कॉस है तो आपका यहाँ पे सी आ रहा है। इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ second one is again start from left side. Here we have fc fx sin ax. क्लियर, इसको प्रूव करते हैं। सो fc fx sin ax, we know fcs is equal to fx cos sx dx। तो fx की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी, cos sx dx एज इट इज लिख दिया। क्लियर, और फिर मैंने वही मेथड अप्लाई किया, cos sx sin ax एंड दिस fx dx। इसको मैंने इस तरह से लिखा एंड देन अगेन अप्लाई cos अल्फा sin बीटा फार्मूला, cos अल्फा sin बीटा फार्मूला, 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो ये यूज किया आपने तो आपका ये रिजल्ट बन गया। अब इसी रिजल्ट को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, साइन fx sin s प्लस ax fx sin s minus ax, and we know this result is 1/2 fs s plus a। साइन लगा हुआ है fs s plus a, यहां भी साइन लगा हुआ है, माइनस दिस साइन इज माइनस, ओके, fs s minus a। सो यूज दिस फार्मूला, वी गेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इसको याद मत रखिए, ठीक है, एक दो स्टेप्स करने के बाद आपका इजीली ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, so that one is second formula. Now third one is prove that fs fx cos ax is equal to 1/2 fs s plus a plus fs s minus a. Now again start from left hand side, okay, so fs fx cos ax, so this into sin x sx dx। क्लियर, वी नो एफ एस, ये एस लगा हुआ है तो आपका साइन एस एक्स डी एक्स लगेगा। ठीक है, बाकी फंक्शन एफ एक्स जो है वो ये आपने लिख दिया, एफ एक्स कॉस ए एक्स फंक्शन है, एफ एक्स कॉस ए एक्स फंक्शन लिख दिया। ठीक है, ये जो फंक्शन है एंड साइन एस एक्स डी एक्स एज इट इज लिख दिया। अब सेम प्रोसेस, ये टर्म यहाँ पे लिख दी, कॉस ए एक्स ये लिख दिया और एफ एक्स आपने ये लिख दिया। इसको जस्ट रीअरेंज किया ताकि हम ये फार्मूला लगा पाए। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा इज 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट, वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। क्लियर, अब देखिए इसी रिजल्ट को आप ये फार्मूला यूज करके लिख सकते हो, 1/2 एफ एस एस प्लस ए प्लस एफ एस एस माइनस ए। तो यहाँ पर साइन है तो ये भी एफ एस है, ये भी एफ एस है। क्लियर हो गया, हाँ यहाँ कॉस होता तो एफ सी लग जाता। क्लियर, तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर, नाउ फोर्थ वन, प्रूव दैट एफ एस एफ एक्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ सी एस माइनस ए माइनस एफ सी एस प्लस ए। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, एफ एस एफ एक्स साइन ए एक्स, तो ये एफ एक्स साइन ए एक्स लिखा और साइन एस एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ एस का फार्मूला ये साइन एस एक्स डी एक्स। और उसके बाद वही स्टेप आपने किया, साइन एस एक्स साइन ए एक्स साइन ए एक्स साइन ए एक्स एंड एफ एक्स इज एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, एंड देन अप्लाई दिस फार्मूला साइन अल्फा साइन बीटा। सो साइन अल्फा साइन बीटा इज 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आपका ये रिजल्ट बन गया। इसी रिजल्ट में आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है, एफ सी एस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है तो आपको एफ सी एस का फार्मूला यूज करना है, एंड दैट वन इज 0 to infinity एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, सो इट बिकम्स 1/2 एफ सी एस माइनस ए माइनस एफ सी एस प्लस ए। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो देखिए इस तरह से आपने ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है बेसिक डेफिनेशन से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना है। Now fourth property is Fourier cosine and sine transforms of the derivative. So let us prove this property. Now prove that first one is fc f dash x is equal to s f s f x minus f0. Clear? And second, f s f dash x is equal to minus s f c f x.
ये दो रिजल्ट आपने प्रूव करने हैं. सो बाई यूजिंग डेफिनेशन of Fourier cosine transformation and Fourier sine transformations and applying the integration by parts method, okay, we can prove this expression. Okay, so start from left side. So FCF dash x is equal to, by definition of Fourier cosine transformation, it becomes 0 to infinity f dash x cos sx dx. Now consider this first function and this one is second function and use the method of integration by parts. We get fx cos sx 0 to infinity, ये लिमिट आ जाएगी, माइनस ये यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर? सो s इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स. क्लियर? तो यहाँ से माइनस ये प्लस बन गया और यहाँ से s आएगा, वो s आपने बाहर ले लिया. क्लियर? नाउ जब आप ये लिमिट्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये रिजल्ट बनेगा एफ जीरो माइनस एफ जीरो. क्लियर? बाकी सारी जीरो हो जाएंगी. ठीक है, प्लस s as it is and this integral is nothing but Fourier sine transform of fx. Okay, so we can write like this way. So this completes the first property. Okay, now second one is start from left side fs f dash x. By definition of Fourier sine transformation, we obtain this result. Now consider this first function and this one is second function. Clear? We get fx sine sx limits 0 to infinity minus s 0 to infinity fx cos sx dx. Clear? And this result, it becomes 0 and minus s as it is, and this integral is nothing but Fourier cosine transformation of fx. Okay, so we obtain this expression. तो देखिए, अगर आप एक बार डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, तो आप एफ सी एफ डैश एक्स कैसे निकाल रहे हो, एफ एस एफ डैश एक्स किस फार्मूले से निकाल रहे हो. ठीक है, इसी को आप और जनरलाइज कर सकते हो इस रिजल्ट को अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है. ठीक है, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में इन रिजल्ट्स का यूज़ करके, ये जो रिजल्ट है इन रिजल्ट्स का यूज़ करके आप इसको रिजल्ट फॉर्मुलेट कर सकते हो. सो सी एफ सी एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एस एफ एस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो. क्लियर? एफ डैश जीरो ये आपका रिजल्ट आएगा, बट एफ एस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, substitute this value here and minus f dash 0 as it is. Clear? And simplify, you will get this expression for fc f double dash x. And second is fs f double dash x. तो Fourier sine transformation of double derivative of fx वो क्या बनेगा? That one is minus s fc f dash x. Now substitute the value of fc f dash x. Clear? So when you substitute, it becomes minus f0 plus s fs fx. इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका ये रिजल्ट बन गया. तो ये रिजल्ट आपको सारे याद रखने पड़ेंगे. Now let us solve this problem. Find the Fourier sine transform of e raised to power magnitude of x and hence evaluate this part 0 to infinity x sin mx divided by 1 plus x square dx. देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है. पहले तो ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ गिवन. ओके, आपको फंक्शन दे रखा हुआ है और आपके पास आपको ये भी पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या है. ठीक है, सो वी नो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स. क्लियर? वेयर व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स कैन बी रिटन एज 2 over pi integral 0 to infinity bs sin sx ds. क्लियर? अब देखिए, इंटरवल 0 to infinity में, ठीक है, x इज पॉजिटिव. क्लियर? देन दिस फंक्शन एफ एक्स ई रेस्ट पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x can be written as e raised power minus x. So within this interval, this function can be written like this way. Clear? अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? To find Fourier sine transform of this function e raised power minus x. इसको हमने इवेलुएट करना है. क्लियर? तो देखो कैसे इवेलुएट करना है. Fourier sine transforms of fx which is equal to e raised power minus x is given by fs fx is equal to, by definition
इंटीग्रल 0 to infinity fx sin sx dx. Clear? Now substitute the value of fx. fx is e raised power minus x sin sx dx. अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा, एंड लिमिट्स 0 to infinity. अब ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट बनेगा s डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर. Okay, so this means fs fx is equal to s divided by 1 plus s square. Clear? So basically what is this? This one is f s and function of s. Clear? fs function of s. So which is the required Fourier sine transformations? Required Fourier sine transform. So fs fx is equal to s divided by 1 plus s square. Clear? Now second part. Second part is evaluate integral 0 to infinity x sin mx divided by 1 plus x square dx. ये आपको रिजल्ट जो है ये आपको प्रूव करना है. Clear? So using inversion formula for Fourier sine transforms, we obtain fx is equal to 2 over pi 0 to infinity fs fx sin sx dx. We know by inversion formula, okay, of this Fourier sine transforms, we have fx is equal to 2 over pi 0 to infinity fs fx sin sx dx. Clear? Now you know what is fx? Fx is e raised power minus x. So e raised power minus x can be written as 2 over pi integral 0 to infinity, and we know fs fx अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये इवेलुएट किया है, एंड दैट वन इज s डिवाइडेड बाई 1 प्लस s स्क्वायर साइन sx ds. क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, साइन mx dx. अगर मैं s को x ले लूं 2 मिनट के लिए, अगर मैं dx बनाने के लिए इस s को मैं चेंज कर रहा हूं x के साथ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये साइन x स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन यहाँ तो साइन एस एक्स है, ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और हमें चाहिए साइन एम एक्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि ये जो एस है उसको एक्स के साथ चेंज करना है, ठीक है। मुझे पहले एक्स को एम के साथ चेंज करना है. जब मैं एक्स को एम के साथ चेंज करूंगा तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस एम इज इक्वल 2 ओवर पाई 0 to infinity एस ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर साइन एम एस डी एस. क्लियर? अब आपने क्या करना है, s को x में रिप्लेस करना है. क्लियर? क्योंकि हमें चाहिए x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो s को जब आप x सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो रिप्लेस दिस s बाई x. ओके, यू विल गेट दिस रिजल्ट. अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका रिजल्ट बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 ई रेस्ट पावर माइनस एम. तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप इस रिजल्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। पहले आप किसको चेंज करने जा रहे हो और बाद में किसको चेंज करने जा रहे हो. पहले आप x को m में चेंज करने जा रहे हो, ठीक है, पहले x को m में चेंज करने जा रहे हो, और दूसरे स्टेप में s को x के साथ चेंज करने जा रहे हो. तब जाकर के ये रिजल्ट जो है वो आएगा. तो सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करके देखना कि इसको कैसे करना है. Okay, next question is find the Fourier sine transforms of e raised to power minus ax divided by x. Clear? Divided by x. तो हमारे पास फंक्शन दे रखा हुआ fx. fx is e raised to power minus ax divided by x. Okay, so let us solve this problem. So what is given? Since we know that the Fourier sine transforms of fx is, we know this expression fs fx, which is equal to 0 to infinity fx sin sx dx, where fx is equal to e raised power minus ax divided by x. क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म्स. ये आपको फाइंड करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर? तो देखो कैसे करना है. एफ एस एफ एक्स ये आपको कैलकुलेट करना है, एंड दैट वन इज बाय डेफिनेशन इंटीग्रल एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, and the value of this fx is e raised power minus ax divided by x and sin sx dx as it is. तो जो भी रिजल्ट आएगा that one is a function of s. That one is a function of s. Clear? Now
अब इसको आगे कैसे प्रोसेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे हम कैसे फॉलो करेंगे, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बन रहा है रिजल्ट डी ओवर डी एस एफ एस। देखिए ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है एफ एस। तो आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो, डी ओवर डी एस एफ एस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, ये विद रिस्पेक्ट टू एस करना तो एक्स यहां पे लगा हुआ है, एक्स यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है, इस टर्म में एक्स नहीं है, एस नहीं है, इस टर्म में एस नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसी को ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो एक्स ई रेस्ट पर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड हियर कॉस एस एक्स, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट एस के साथ कर रहे हो तो एक एक्स एक्स्ट्रा आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। So after differentiating both sides with respect to s, we obtain this result. Okay, just simplify x or x cancel. So we obtain this result. Clear? And you know very well known result 0 to infinity e raised to power minus a x cos sx dx is a divided by s square plus a square. Okay. आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको एफ एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, सो when you integrate with respect to s, we obtain fs is equal to integral 0 to infinity a over s square plus a square ds, and you know this integral is tan inverse s over a plus c. Clear? अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, and you know when s is equal to 0 then fs is equal to 0. Clear? When s is equal to 0, fs is equal to 0, it becomes c is equal to 0. Clear? So c is equal to 0. Substitute this value c here, you will get the Fourier sine transform of this function, and that one is fs, which is equal to tan inverse s over a. So in this way you can find the Fourier sine transforms of the given function. तो एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, एक बार आपने इंटीग्रेट किया, आपका अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो एफ एस जो है वो आ गया, एफ एस इज इक्वल टू दिस. Now one more question, find the Fourier cosine transform of e raised power minus x square, e raised power minus x square. तो देखिए इस प्रॉब्लम में फंक्शन आपको दे रखा हुआ है, फंक्शन इज e raised power minus x square. देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ सी एफ एक्स कैलकुलेट करना है. So what is given? fc fx is equal to, by definition, integral 0 to infinity fx cos sx dx, where fx is equal to e raised power minus x square. Clear? अब देखिए ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, ठीक है. Purpose is we are going to evaluate Fourier cosine transform of this function. Okay, so substitute these values. So Fourier cosine transform of this function is given as fc e raised power minus x square is equal to, by definition, e raised power minus x square, this integral 0 to infinity cos sx dx, and let us suppose this one is I. Let us suppose this one is I. जैसे मैंने प्रीवियस मेथड किया, डिफरेंशिएट करना है फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, तो जब आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस, वी गेट डी आई ओवर डी एस. मैं जस्ट नोटेशन यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं है. मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता था, एफ सी एस, ऐसे भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. मैंने यहाँ पे आई कर लिया, इस इंटीग्रल को मैंने आई रिप्रेजेंट कर दिया. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, सो डी आई ओवर डी एस इज इक्वल टू, जब आप इंटीग्रेट लोगे विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, तो एस तो यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, तो यही बनेगा कॉस एस एक्स का बनेगा माइनस साइन एस एक्स इंटू एक्स. तो एक्स ये लग गया, साइन एस एक्स ये लग गया, माइनस साइन यहाँ पे लग गया. अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 साइन एस एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इस तरह से आप लिख सकते हो. क्लियर? नाउ बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ओके, you will get this expression, you will get this value. Clear? And then simplify, right? We get minus s over 2
इंटीग्रल 0 to infinity e raised power minus x square cos sx dx. बट ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये है i. Okay, this one is I. Clear? This means we have minus s over 2i. Clear? अब di over ds is this result. This means di over I is equal to minus s over 2 ds. Clear? Now integrating both sides. So when you integrate, we obtain log I is equal to minus s square over 4 log c. Okay? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस ब्रैकेटेड टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट बनेगा माइनस एस स्क्वायर ओवर 4 प्लस लॉग सी. दिस मीन्स आई इज इक्वल टू सी ई रेज पावर माइनस एस स्क्वायर ओवर 4. ओके, अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है. ओके, व्हेन एस इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? व्हेन एस इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ आई इज अंडर रूट पाई ओवर 2. आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये रिजल्ट आएगा. इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए, आएगा अंडर रूट पाई ओवर 2. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू व्हेन आई इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2 और s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट पाई ओवर 2 आएगी. ओके, द वैल्यू ऑफ c इज अंडर रूट पाई ओवर 2. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, you will get I which is equal to fc e raised power minus x square is under root pi over 2 into e raised power minus s square over 4. So this one is the answer of this problem. Okay, तो इस तरह से आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ e raised power minus x square को इवेलुएट करोगे. Clear? Now, next we will evaluate Fourier cosine transforms of fx is equal to x when x in between 0 to 1, 2 minus x when x in between 1 to 2 and 0 when x is greater than 2. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? ओके, सो व्हाट इज गिवन? Given is, we know Fourier cosine transforms of fx. That one is fc fx is integral 0 to infinity fx cos sx dx. Clear? We know this result. Where fx is this, which is given. Fx is x when x in between 0 to 1, 2 minus x when x in between 1 to 2 and 0 when x is greater than 2. Now, to find Fourier cosine transforms of fx. To find Fourier cosine transforms of fx which is equal to this. अब इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है. ठीक है, और अब आपने fx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इंटीग्रल इज डिवाइडेड इनटू सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स फ्रॉम लिमिट्स 0 to 1, 1 to 2 and greater than 2. Clear? So this means 0 to 1, 1 to 2 and 2 to infinity. तो ये तो आएगा 0, यहाँ fx की वैल्यू रख दी और यहाँ fx की वैल्यू रख दी आपने. ठीक है, अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है. क्लियर? तो जब आप सॉल्व करोगे, पहले इंटीग्रल को सॉल्व करोगे बाय पार्ट्स तो आपका ये रिजल्ट आएगा. सेकंड को करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा. इसको आप देख लीजिएगा कैसे किया हुआ है. ठीक है, जब आप ये पूरे स्टेप्स कर लोगे फिर आपने लिमिट्स का यूज़ करना है. ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद ये बनेगा साइन एस ओवर एस. क्लियर? प्लस कॉस एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर. ये आप सब्स्टिट्यूट करिए 1 और 0. क्लियर? और यहाँ पे 1 और 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये रिजल्ट बनेगा. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो बस. क्लियर? सो व्हेन सिंप्लीफाई यू विल गेट 2 cos s ओवर एस स्क्वायर माइनस cos 2s ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर. तो इस तरह से आपने जब भी कोई फंक्शन fx दे रखा होगा, ठीक है, आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है. ठीक है, तो आप इस इंटीग्रल्स को आप सॉल्व करिए. जहाँ आपको कॉम्प्लिकेसी लगती है, ठीक है, वहाँ एक बार डिफरेंशिएट ले लो, एक बार इंटीग्रेट कर लो, तो वहाँ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अदरवाइज आप इन इंटीग्रल को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है उसको आप बना सकते हो. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स टुडेज प्रेजेंटेशन. Okay, so thank you very much. Next time we will discuss few more topics of this important transformation, Fourier transformations. Okay, so thank you very much. Have a nice day.